after treatment. Dholera has an inherent ability to manage and recycle waste. Water recycling through a smart wastewater system allows for 100% recyclability of domestic and industrial wastewater up to tertiary standards, and the smart stormwater management system saves, harvests and treats stormwater runoff, which ensures sustainability and creates a city water body to enhance quality of life. An integrated solid waste management facility is planned to handle all types of solid waste, like municipal solid waste, industrial solid waste, e-waste and biomedical waste, and will include waste-to-energy generation facility. A smart city needs to create and utilize smart power. To shape this vision into reality, Dholera will implement smart metering and monitoring to minimize losses and ensure a reliable power supply. Earning the smart tag, Dholera will focus on various forms of renewable energy by utilizing resources like solar and other sustainable modes. The role of information and communication technology is to build a smart, socially and technologically attractive, sustainable, world-class city, which will be one of the engines for the economic growth of the region. Dholera SIR is expected to be a city that will use information and communications technology as an underlying enabler in all spheres of the city, and will integrate multiple essential disciplines such as governance, healthcare, safety and security, education, transportation, industrial growth, utilities and economy, with city dashboards enabling monitoring of all the city parameters. Dholera, a smart city like no other, offering never-seen-before ease of doing business with large plot sizes, plug-and-play infrastructure, the right environment for R&D and excellent growth potential. Dholera, a sustainable city worth living in, offering easy access to open spaces, greenery and community amenities alongside a safe, convenient and pollution-free environment with easy access to public transport. Dholera, a smart city, a smart investment. Okay. So good evening everyone. So आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे और हमने देखा कि किस तरीके से बहुत ही अनबिलीवेबल तरीके से स्मार्ट सिटी होने जा रही है। बट क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सीखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन आज लेंगे हम, जो नई इन्फॉर्मेशन हमको मिलने वाली है। सो कितने लोग एक्साइटेड है कुछ नया जानने के लिए? यस, सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, कुछ आज नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बिकॉज जो आज के स्पीकर है उनका एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे। बोलते हैं जो लोग आए उसका भी भला, जो नहीं आए उसका भी भला। सो आज हमको नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज हमको ऐसा मैसेज मिलने वाला है, शायद ऐसा हो सकता है कि हमने कई बार सुना नहीं हो, जो हमको आज इन्फॉर्मेशन वो मिलने वाली है। सो क्या करना है, हम लोगों को लास्ट तक हमको रुकना है। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आज हमको मिलने वाली है, राइट? सो मैं इन्वाइट करूंगा, सो आज के जो स्पीकर है, अनबिलीवेबल स्पीकर है, सो उनको इन्वाइट करूंगा विथ योर क्लैपिंग। सो यस, आज के स्पीकर मिस्टर कैलाश गुजर सर। यस सर, प्लीज वेलकम सर। सर जी धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो नीति जी सर और मोहन जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया है आज प्लान प्रेजेंट करने का। तो बाकी जो टीम के साथी जो हैं जुड़े अपने साथ में, उनका भी धन्यवाद करते हैं और अपन अपेक्षा रखते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो भी जल्दी अपने साथ जुड़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले जो आज की मीटिंग में अपन दो तीन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक तो है कि ढोलेरा क्या है, उसको अपन मोटा मोटा समझेंगे। उसके बाद में वहाँ पे जो मेरी टेक है वो क्या, कैसे, कब से काम कर रही है उसके बारे में। फिर अपन वहाँ पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में, किस प्रकार से अपन लैंड परचेज कर सकते हैं। तो 3 महीने अलग अलग इनको भाग में बांटा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ढोलेरा की, सॉरी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, क्योंकि भारत का आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 90 US बिलियन डॉलर का है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, ये 2008 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और वो इसलिए हुई थी कि उस समय जो GDP थी वो बहुत डाउन हो रही थी, 4.7 पे थी, उसको 10 पे कैसे ले जाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक सर्वे करवाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो डेवलप कंट्रियां हैं उनका देखा कि क्या वहाँ क्या है, अपने यहाँ क्या।
तो इन्होंने पाया कि दो चीज़ों पे अपन को जोर देना चाहिए, वो उस पर मेन ये है कि ट्रांसपोर्ट और और प्रोडक्शन। तो ट्रांसपोर्ट को कैसे अपन सुचारू रूप से अपन उसको कर सकते हैं, और प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो इन दोनों चीज़ पे जोर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो उसमें चार चीज़ें आती है ट्रांसपोर्टेशन में, कि रोड और रेलवे, ये दोनों चीज़ें जो भारत के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको सुचारू रूप से करने में काम आती है। दूसरा ये कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी व्यापार अपन करते हैं तो उसमें दो चीज़ रहती है, एयर और सी का। यानी कि अपन एयर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं और समुद्र के रास्ते सी के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये चारों कनेक्टिविटी पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रोड की। तो इस दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसके अंदर 6 राज्य हैं, 6 स्टेट हैं। इसमें यूपी के दादरी से ये स्टार्ट है, उसके बाद में है हरियाणा स्टेट, राजस्थान स्टेट, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, जिसके अंदर जवाहरलाल पोर्ट तक की है। तो इसमें क्या होगा कि 12 लेन का रोड प्रस्तावित है, एक्सप्रेस हाईवे। अभी 8 लेन बना है, बाद में उसकी जरूरत के हिसाब से उसको 12 लेन कर दिया जाएगा। तो इसके बनने से क्या फायदा होगा, ये कि आज की तारीख में अगर कोई ट्रक लोड होकर दिल्ली के मुंबई के बीच में जाता है तो 25 साढ़े 25 घंटे लगते हैं। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद में 12 साढ़े 12 घंटे में पहुंच जाएगा। तो यानी कि समय आधा हो गया, फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण के हिसाब से कार्बन भी कम उत्सर्जित होगा। तो ये दूरदृष्टि के हिसाब से ये सोच रख के बनाया गया है। और इसके साथ में बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे पैसेंजर में तो ठीक ठाक, लेकिन यानी कि मालवाहक में भाड़ा सस्ता होते हुए लोग उसमें माल डालते नहीं। उसका कारण है कि समय पर डिलीवरी नहीं होती है। जमाना फास्ट है तो लोग फिर देखते हैं कि अगर ये आज अगर मुंबई से रखेंगे तो 3-4 दिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते लग जाएगा। तो इसके लिए इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने कि अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसको इसमें ऐड किया है, जिससे कि आने और जाने के लिए केवल मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक होंगे। वो बनने से क्या होगा कि सुबह अगर वो मुंबई से पार्सल रखेगा और शाम को दिल्ली पहुंच जाएगा, 12 घंटे में डिलीवर हो जाएगी। तो उसके बाद में लोग उसमें डालने लगेंगे। प्लस कम खर्चे में, यानी कि एक इंजन पे वो जो ट्रेन होगी उसकी लंबाई बढ़ा दी जाएगी, उसको डबल डेकर कर दी जाएगी, कम खर्चे में ज़्यादा माल पहुंचाएगी। तो इससे भी कहीं ना कहीं जीडीपी में प्लस होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगली की, जो एयरपोर्ट है। इसके अंदर जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है वो एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा 80% कार्गो में यूज आने वाला, एशिया का सबसे बड़ा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है। तो उससे क्या होगा कि उस समय केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, चाहते तो किसी भी स्टेट को दे सकती थी, लेकिन इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर विशेष तौर से भारत सरकार का 50% पैसा है और 50% जापान सरकार का पैसा लगा हुआ है। तो जापान सरकार ने कहा कि प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाना है तो आपको इस चीज़ों को आपको अलग से करना, साइड में रखो और एक्सपर्ट की अपन को राय लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने देखा तो एक सर्वे करवाया कि आज की तारीख में कौन सा स्टेट है जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता है। तो उसमें पाया गया कि 100 कंटेनर बाहर से आ रहा है ज़्यादा, उसमें यानी कि 38% जो कंटेनर वो गुजरात स्टेट से आ रहे जा रहे हैं। तो 38% योगदान वहां से आ रहा है, 38% का। तो उन्होंने ये एयरपोर्ट गुजरात को दे दिया। और जबकि वहाँ सरकार अलग थी, वहाँ सरकार अलग, लेकिन प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उन्होंने ये ऐसा किया है। उसके बाद में अगर बात आती है सी पोर्ट की, तो सी पोर्ट में ऊपर के 4 राज्य हैं, यूपी से लेके और राजस्थान तक, मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में संबंध लगता है नहीं, तो ऑप्शन खत्म हो चुका। फिर रहे केवल गुजरात और महाराष्ट्र। जबकि तो इसमें क्या कि इन सब सर्वे के आधार पे ये सी पोर्ट भी गुजरात को मिल गया, जबकि ऑलरेडी वहाँ पहले से बंदरगाह है। लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए ये गुजरात को दे दिया गया। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में 6 राज्यों के अंदर पहले 6 नोट्स बनने थे, अलग अलग बड़े बड़े इंडस्ट्रियां स्थापित होनी थी। अभी लेटेस्ट न्यूज मिली कि 8 नोट्स बनेंगे इस दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में। तो उसमें सबसे पहले गुजरात में मोदी जी ने कहा कि यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ। तो वो एक्चुअली क्या 2008 से पहले उनके दिमाग में प्लान चल रहा था कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर मेरे यहाँ आए और मैं एक इंडस्ट्रियल हब बनाऊं। तो उनको जब ये केंद्र से
दिल्ली मुंबई कॉरिडोर लॉन्च हुआ तो उनको सारा बजट वहां से मिल गया है। तो उन्होंने फिर जो अपना दायरा था उसको बढ़ा दिया और सबसे पहले कहा कि अपन यहाँ, मैं गुजरात में स्टार्ट करता हूँ इंडस्ट्री। तो अपन बात करते हैं धोलेरा की, जो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर भावनगर रोड पे है। तो उन्होंने वहाँ धंधुका तहसील दी, उसमें से अलग से 33 गांव को मिला के और धोलेरा जो सबसे बड़ा गांव था उसको तहसील डिक्लेयर किया। और धोलेरा को बनाने के बाद में वहाँ के जो 22 गांव हैं उनको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इंडस्ट्रियल के हिसाब से उसको अलग से जोन बनाया 22 गांव में। उसके जो क्षेत्रफल है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि अगर अपन सिटी में समझे इसको तो दिल्ली से दुगनी साइज का है और मुंबई से भी बड़ा है। जब इतना बड़ा इस बड़े लेवल पे जब सिटी बन रही है तो उसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें से अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा कि अपना जो गवर्नमेंट का टैक्स आता था उस पर अधिकतर पैसा क्या आर्मी पे खर्च हो जाता था, वो भी हथियार वेपन्स परचेज करने में। तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपन जो विश्व स्तर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 168 कंपनियां, उन सबको यहाँ इन्वाइट कर दिया कि आपको जो भी सुविधाएं चाहिए मैं यहाँ उपलब्ध कराऊंगा और यहाँ आके आप अपनी यूनिट लगाइए। तो उसमें जब बड़ी बड़ी कंपनियों, लगभग 15 कंपनी जो हथियार बनाती है वो रशिया से है, तो उन सारी कंपनियों को यहाँ बुला लिया। यहाँ जब हथियार बनेगा तो स्वाभाविक है कि अपने को सस्ता पड़ेगा, जो उस पर पैसा खर्च हो रहा है वो कम होगा और अपने को सस्ते में हथियार उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद में ज़्यादा बनेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनको जरूरत है उनको बेच के भी वापस अर्निंग की जा सकती है। तीसरा है कि यहाँ पर जो अगर यूनिट लगेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से आज की तारीख में अपन कंपनियों की बात करें तो भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा महिंद्रा अडानी अंबानी जो भी है, उन सब की यूनिट यहाँ पे है। और अपन एवियन सेक्टर की बात करते हैं, जो दो बड़ी कंपनियों का राज है एवियन, जैसे कि एयरबस और बोइंग 7, इन दोनों ही कंपनियों का पूरे एशिया में कहीं पे भी कोई प्लांट नहीं है आज की तारीख में। यानी कि अगर प्लेन में कोई टेक्निकल मिस्टेक आती है तो यूरोप या अमेरिका जाना पड़ता है। सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पे धोलेरा के अंदर जो एयरबस है वो टाटा के साथ मिलकर यहाँ पे एमआरओ यहाँ पे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगा, रिसर्च यहाँ होगा और ऑपरेटिंग भी यहाँ से होगा। वो यहाँ पे टाटा के साथ मिलकर एयरबस एमआरओ सिस्टम से यहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने का काम कर रही है, जिससे कि यहाँ पे एक तो वो अपने को सस्ते में मिल जाए और फिर यहाँ से पूरी दुनिया में मार्केटिंग की जा सके। तो आज की तारीख में धोलेरा के अंदर देश और विदेश की सारी कंपनियां मिला के लगभग 600 कंपनियों का यहाँ पे एमआई हो चुका है। तो यानी कि वो सब कंपनियों को, अधिकतर कंपनियों को जमीन अलॉट हो चुकी है, वो जमीन का वहाँ पे भरा वगैरह काम चालू है। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, धोलेरा इतना जब बड़ा बन रहा है तो एक साथ तो बनेगा नहीं, ये स्वाभाविक है। तो ये 3 फेज में बन रहा है, फेज सेकंड और फेज थर्ड। तो फेज फर्स्ट की बात करते हैं अपन, ये 3 फेज और 6 टाउन में बन रहा है। तो पहला जो फेज होगा वो 2024 से स्टार्ट होगा और उसके अंदर TP1 और TP2, टाउनशिप प्लानिंग 1 टाउनशिप प्लानिंग 2 पहले फेज में तैयार हो रहा है। तो जब अपन देखें कि बाहर की जो भी कंपनी आएगी तो मेन चीज वो 2 चीज देखती है कि वहाँ अपने इंडिया में क्यों जाए। तो वो सुरक्षा और सुविधा 2 चीज देखती है कि हमें सुरक्षा क्या मिलेगी हम जाएंगे तो, और वहाँ सुविधाएं क्या मिलेगी। तो सुरक्षा की बात करते हैं अपन, तो जिस प्रकार सुरक्षा की जरूरत क्यों है महसूस होती है, जैसे टाटा नैनो का नाम सुना होगा सर आपने। इसका सबसे पहले 2010 के अंदर सिंगूर में प्लांट प्रस्तावित था, वहां पे जमीन वगैरह मुआवजे भी दे दी गई टाटा ने। वहां पे लोकल लोगों ने वहां पे आंदोलन किया, वहां की जो स्थानीय सरकार थी उसने उनका सपोर्ट किया, ममता बनर्जी ने, और टाटा को वहां से भाग के और फिर आनंद गुजरात में आना पड़ा। ऐसी स्थिति भविष्य में किसी भी इंडस्ट्री के साथ में न हो, इसलिए यहाँ पर एक जो एक्ट है SAR उसको लागू कर दिया गया। उससे क्या होगा कि वो एक्ट है, इसमें राज्य में सरकार चेंज हो या केंद्र में सरकार चेंज हो, लेकिन उस एक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां उस एक्ट को पढ़ के ही यहाँ आएगी, क्योंकि जो भी कंपनी आ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी कंपनियां, तो वो 5-15 साल के लिए नहीं आ रही है, वो कम से कम 100 साल के लिए आ रही है। तो वो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आ रही है। अब बात करते हैं अपन सुविधा की बात। सॉरी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट का उपयोग सबसे पहले चाइना ने किया था।
और चाइना ने शंघाई को डेवलप किया। पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियां वहाँ चाइना में गई, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, और वहाँ जो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया, चाइना ने पूरी दुनिया में अपने बाजार के हिसाब से वो उसको बेचा, और वो रिच बना। तो वही सोच के मोदी जी ने कहा कि क्यों ना अपन उन सब कंपनियों को यहाँ इन्वाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुविधा की। सुविधा में मेन 3 चीज होती है बेसिक: पानी, बिजली और रोड। तो पानी की बात करते हैं तो ये क्या कि इस दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंदर, बजट के अंदर ही ये सब चीजें यहाँ ही पैदा की जा रही। पानी यहाँ की व्यवस्था यहाँ की जा रही है, बिजली की व्यवस्था यहाँ की जा रही है, या राज्य सरकार के भरोसे भी नहीं है। तो पानी, जैसे इजराइल टेक्नोलॉजी से समुद्र के खारे पानी को मीठा करने के वहां पे 90 करोड़ का जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वो आज की तारीख में, कल मोदी सरकार कहते वो बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। और प्लस वहाँ जो रेन वाटर है उसका भी ट्रीटमेंट करके उसी से किया जाएगा। पहला चरण में 90 करोड़ का वो बन के तैयार हो चुका है, उसके बाद में 100 करोड़ का और बनने वाला है, जिससे कि आने वाले समय में धोलेरा में पानी के लेकर कोई समस्या रहेगी नहीं। अब बात आती है बिजली की। तो बिजली के लिए वहाँ पे 5,000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था करी गई है, जिसके अंदर अपन इसको समझे तो बिहार राज्य को जितनी बिजली की जरूरत होती है उतनी बिजली केवल एक सिटी के लिए उपलब्ध करा दी। तो वो भी सोलर एनर्जी वगैरह से। तो उसके आज की तारीख में वहाँ क्या है कि टाटा का वहाँ पे 300 मेगावाट का प्लांट चालू भी हो चुका है, 10 एकड़, लगभग 10 एकड़ में। और अब बात आती है रोड की। तो इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। ये जब 2008 में चालू हुआ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो सबसे पहले वहाँ जमीन एक्वायरमेंट ये करना और अलग अलग परमिशन लेना, 2016 से वहाँ काम शुरू हुआ। तो 2016 में सबसे पहले एबीसीडी बिल्डिंग 78 करोड़ की वहाँ बनी है। उसके बाद में जो पहला फेज में टाउन 1 और टाउन 2 है। तो टाउन 2 है जो उसमें अभी तक वहाँ पे लगभग 80% से 90% के आसपास काम हो चुका है। वहाँ रोडें बन चुकी है। वहाँ पे पानी की निकासी को लेकर जो समस्या थी उसके समाधान के लिए वहाँ पे कृत्रिम रिवर बनाई गई है, वो कंप्लीट है। और वहाँ पे जो पानी की निकासी के लिए जो चैम्बर वगैरह हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। टाउन 2 आज की तारीख में लगभग कंप्लीट है। 22.5 किलोमीटर में वो टाउन 2 बन के लगभग तैयार होने वाला है। उसके बाद में टाउन 1 बनेगा और फिर यहाँ पे फेज 1 की शुरुआत हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि ये जैसे वेदांता की बात करते हैं, जिसको सब जानते हैं। वेदांता कंपनी का यहाँ पे अभी आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने का जो प्लांट है, वो ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके साथ मिलके इन्होंने 154 लाख करोड़ रुपए का वहां पर प्लांट डालने का, पहले 1,000 एकड़ में था, अभी 750 एकड़ लैंड उनको मिली है, और वहां पे उसका काम शुरू भी हो चुका है। 2025-26 में उसका प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। तो अपने यहाँ जो भारत में जरूरत है उसकी वो पूर्ति भी यहाँ हो जाएगी। वो चाइना उसके भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, और उसके अलावा यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, उससे भी अर्निंग होगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने इतनी बड़ी तैयारी करी है। कल अपने बीच में ग्रुप में न्यूज में देखा था कि पूरे भारत में 100 विश्वविद्यालय के अंदर वर्क फोर्स तैयार की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कितनी लंबी सोच में वहाँ काम होने वाला है। तो वहाँ दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है उससे अहमदाबाद से आज की तारीख में अपन कनेक्टिविटी की बात करें, जो 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है वो लगभग 70-80% बन के तैयार हो चुका है। दिसंबर तक वो पूरा बन जाएगा और जनवरी 2024 में उसको चालू हो जाएगा वो। उसके अलावा पैरेलल उसके साथ साथ मेट्रो और फिर बाकी जो ब्रॉडगेज वगैरह वो सब चीजें लाइनें वो सब बनना शुरू हो जाएगी। तो आज की तारीख में ये सब चीजें धोलेरा में हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं कि धोलेरा के अंदर इसके अलावा मैंने जो बताया, इसके अलावा भी काफी कुछ अपन जानेंगे तो काफी समय लग जाएगा, और अपन इसको लगभग काफी कुछ लोग जानते भी होंगे। लेकिन इसके साथ में अपन वहाँ क्या कर रहे हैं, अपन अब मैं परिचय देता हूँ। जो जिसके डेवलपर के साथ अपन मिलके वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो हैं राजीव जी जानते हैं, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने 2010 में एमबीए करके जब सूरत गए थे तो धोलेरा के बारे में उनको किसी ने बताया, तो वो वहाँ गए और पूरा उसका यहाँ की पोटेंशियल को समझा, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेला यहाँ जमीन लूँ, उससे बढ़िया कि मेरे एरिया के या पूरे सब जगह से लोगों को यहाँ पे मैं लाके बसाऊं। तो उन्होंने बड़ी सोच के साथ में अपना कारोबार शुरू किया 2010 में, और मेरिक इंफ्राटेक नाम से जिन्होंने फर्म बनाई है, उसमें वहाँ के स्थानीय जो सूरत के पाटीदार जी हैं वो पार्टनर हैं। वहाँ किसानों से जमीन डायरेक्ट अपन नहीं ले सकते हैं एग्रीकल्चर, तो उनके नाम पे लेते हैं।
और फिर वहां पे दो प्रकार से अपन जमीन परचेज कर सकते हैं। एक तो फ्लैट के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से प्लॉट ले सकते हैं। तो वो सोसाइटी के हिसाब से आज की तारीख में वहाँ प्लॉट उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इसमें अपन शुरुआत की बात करते थे, इन्होंने 2010 में शुरुआत करी तो मात्र 10 एकड़ जमीन से वहां पर स्टार्ट किया था इन्होंने। आज की तारीख में इनके पास 300 एकड़ जमीन है और लगभग 700 करोड़ की वर्थ वैल्यू की कंपनी है आज की तारीख में ये। और इसके लगभग वहाँ धोलेरा के आसपास 8 बड़े बड़े प्रोजेक्ट सॉर्ट आउट हो चुके हैं और अभी एक और आज लॉन्च हुआ है, मतलब उसका अनाउंसमेंट हो चुका है कि कितने प्लॉट है क्या है, वो सारी खुशखबरी सबको मिल चुकी है। अब अपन बात करते हैं वहाँ क्या होता है कि लोग काफी सवाल करते हैं, तो उसमें मैं बता दूं कि वहाँ जो जमीन होती है वो एग्रीकल्चर जमीन लेके और फिर ये सरकार के सामने रखी जाती है कि हम इसमें सोसाइटी के हिसाब से प्लॉट ले रहे हैं। तो फिर सरकार वहाँ पे एक सर्वे नंबर डालती है, NA/NS टाइटल क्लियर करती है, वो सर्वे नंबर डाल के देती है कि अब आप इसको आप और वहाँ पे कितनी साइज के प्लॉट होंगे, कितनी साइज का गार्डन होगा, कितनी से वो सब जगह मंदिर वगैरह वो सारी चीजें सरकार तय करती है। डेवलपर 1 इंच भी जमीन ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम शुरुआत में जब लोगों को दिलाने गए तो लोग कहते कहाँ है यहाँ पे घास फूस में ला के हमको दे दिया, यहाँ पे पत्थरगड्डी भी नहीं है। तो फिर वहाँ पता किया कि नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट की टीम ही आती है और वो डंपी लेवल वगैरह से वो पत्थरगड्डी का सारा वो काम करके जाती है। तो वो 20 दिन के बाद में वो आए भी थे और उन्होंने वो सारा किया। तो वो सारा सरकार की प्लानिंग के हिसाब से ही काम होता है वहाँ पे। अब अपन वहाँ देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार से अपन लैंड ले सकते हैं। वहाँ रेजिडेंशियल और एक इंडस्ट्रियल, दो प्रकार के अपन को वहाँ पे प्लॉट दिलाते हैं। तो रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो आज की तारीख में वहाँ स्क्वायर यार्ड में चलता है। तो बजट की अपन बात करें तो लगभग 8-9 लाख से स्टार्ट है और 15-20 लाख तक की रेंज के अंदर अपन उसमें अलग अलग साइज के हिसाब से अपन ले सकते हैं। और स्क्वायर यार्ड में समझना चाहें तो 5500 रुपये स्क्वायर यार्ड में अभी आज की तारीख में रेजिडेंशियल प्लॉट उपलब्ध हैं मेरिक इंफ्राटेक के माध्यम से। और दूसरा इंडस्ट्रियल की बात करें तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कार्गो एयरपोर्ट आ रहा है तो स्वाभाविक है कि वेयर हाउस के लिए भी वहाँ पे काफ़ी डिमांड रहेगी। गवर्नमेंट का वेयर हाउस है लेकिन वो काफ़ी अंदर धोलेरा के अंदर 14 किलोमीटर वहाँ से दूर है और अपनी जो जमीन है वो ऑन रोड हाईवे 6 लेन के नजदीक है और वो मात्र धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और वो भी अहमदाबाद की तरफ। तो स्वाभाविक है कि लोग आने जाने का जो उनको भाड़ा महंगा पड़ेगा, उस हिसाब से अपने जो प्राइवेट वेयर हाउस है ये ज़्यादा चलेंगे। तो जिनके पास अच्छा बजट है अपन उनको वो भी बताते हैं ताकि वो उसमें भी निवेश करते हैं। वहाँ गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से वहाँ शेड वगैरह बना के छोड़ देंगे तो आने वाले टाइम में उनको अच्छा रेंट मिल सकता है। तो दोनों अपन प्रपोजल मेरी के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। उसकी रेट है 6500 स्क्वायर यार्ड की। वहाँ लगातार रेटें बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे अलग अलग अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि मारुति का प्लांट आने वाला है, वेदांता का आ गया, टाटा का आ गया। अभी लगभग सितंबर पहले जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पे माइक्रोन कंपनी थी तो उसका भी एक प्लांट आया कि सेमीकंडक्टर वो भी बनाने वाले हैं। इसी साल वो वहाँ पे प्लांट शुरुआत करने वाली है। तो ये सब चीजें जब मीडिया के माध्यम से लोग सुनते हैं तो वहाँ के जो किसान हैं वो भी अपनी जमीन की रेटें बढ़ाते हैं। तो आज की तारीख में सबसे अच्छा जो बेस्ट टाइम है जो वहाँ लेना चाहता है इस सपनों के शहर धोलेरा के अंदर उसके आसपास जो अपने प्रॉपर्टी अपना आशियाना लेना चाहता है, अभी सही समय है तो वहाँ ले सकते हैं। और आज जैसे कि बताया कि काशीधरा में नई प्लानिंग लॉन्च हुई है तो उसके बारे में भी अपन पूरा समझेंगे मोहन जी सर के माध्यम से। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये अपर उसमें जमीन ले कैसे सकते हैं। तो ये है कि इस प्रपोजल को बताने के बाद में अपन उनसे बात करते हैं कि यदि उनके पास बजट है तो वो जितना उनके पास बजट की कैपेसिटी उस हिसाब से वहाँ प्लॉट लेके वहाँ पे पहले किस्त जमा कराएगा कंपनी के अकाउंट में और कंपनी उनको 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्री करके दे देगी। ठीक है। और रजिस्ट्री के 90 दिन बाद वहाँ ऑनलाइन अपने वो प्लॉट को चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि मेरा प्लॉट कौन से गांव में है, कितने स्क्वायर फीट का है, स्क्वायर यार्ड का है और मैं किस कंपनी के माध्यम से मैंने लिया है। क्योंकि हमने हमारी टीम के काफ़ी लोगों को इस प्रकार से उनकी रजिस्ट्री के बाद में जो
ऑनलाइन प्लॉट वो दिखाए हैं। हमारे राजस्थान में केवल एग्रीकल्चर जमीन ऑनलाइन दिखती है, लेकिन यहाँ गुजरात में ये सुविधा भी है, तो हम ये दिखाते हैं। तो उसके बाद में वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, मेरा नोटेशन वगैरह सब क्लियर हो चुका है और मैं आज की तारीख में प्लॉट का मालिक हूँ। दूसरा है कि अगर उसके पास बजट थोड़ा कम है, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप 30% के हिसाब से आप बुकिंग करा दीजिए, उसको होल्ड करवा दीजिए। उसके बाद में आपको मौका मिलता है अगले महीने, जैसे कि अभी मान लो जुलाई में करवाया, तो अगली किस्त अगस्त में आप जो किस्त जितना बजट आपके पास है 1 लाख से ऊपर का, वो जमा करा दीजिए। और जब टोटल बाकी जो पेमेंट बचा वो तीसरी किस्त में, यानी कि टोटल 3 किस्त के अंदर आप अपना बजट के हिसाब से वहाँ जमा करा दीजिए। और 3 किस्त में जो पूरा पेमेंट आ जाता है, तो आपको उसके पूरा पेमेंट आने के बाद में आपकी रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अपन उनको सजेस्ट करके वहाँ पर प्लॉट दिलाते हैं। और अब बात आती है कि जो अलग अलग जगह से लोग ले रहे हैं, आज की तारीख में अपनी मेरी की बात करें तो 6 देशों में अपने धोलेरा के अंदर मेरी के माध्यम से लोगों ने लिया है, एनआरए वगैरह है, प्लस 16 राज्य से लिया है। तो कहीं ना कहीं दूरी है 200-300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो कंपनी इसके लिए एक सुविधा देती है कि इतनी दूर आप बार बार आना जाना आपका रहेगा नहीं, वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसकी जानकारी हम आपको ऑनलाइन भेजेंगे। वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से कंपनी उनको अपडेट कराती है साप्ताहिक रूप से। तो वो पहले तो देख के संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, मैंने जहाँ जमीन परचेज करी है वहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि वहाँ लगातार लगातार डेवलपमेंट हो रहा है सिटी में, और हमारे जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे। तो वो उसको देख के संतुष्ट होता है। उसके बाद में वहाँ उसको ऑप्शन आता है कि आप इसको अपने मित्रों को, परिवारजन को शेयर भी कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो वो शेयर करे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, स्टेटस पर लगाए, जैसे भी करे वो। तो इस चीज का कंपनी क्या करती है कि उनको एक अलग से जिम्मेदारी देती है कि अगर आप ये करते हैं, इतना सा काम करते हैं, तो हम आपको एक अलग से जो बेनिफिट है वो देंगे। तो पहले तो आपने पैसा दिया, आपको रजिस्ट्री आपके हाथ में मिल गई, क्लियर हो चुका है। उसके बाद में कंपनी कहती है कि आप मात्र ये शेयर करने का काम करते हैं साप्ताहिक रूप से, तो हम आपका टोटल जो अमाउंट वहाँ जमा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, उसका हम आपको 1.5% आपको बीपीआई के रूप में देंगे, बिजनेस प्रमोशन इंसेंटिव के रूप में आपको देंगे। और आज की तारीख में कंपनी दे रही है इसको 60 महीने के लिए। इसमें से 5% टीडीएस और 5% एडमिन चार्ज माइनस होता है, और बाकी का आपके अकाउंट में ऑनलाइन आपके खाते में आ जाते हैं। तो ये हर मंथली आता है, हर महीने आएगा, और आपको 60 महीने के लिए आएगा। लेकिन मैं सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने जितने मिलने वाले हैं उनको आप जल्दी से जल्दी यहाँ दिलाने का प्रयास करें और इस चीज़ का लाभ दिलाएं, क्योंकि ये बीपीआई बहुत जल्दी इसकी अवधि कम होने वाली है। आज 60 महीने मिल रहा है, हो सकता है अगले महीने से, अगस्त से, ये 36 महीने ही मिले। तो आप अपने मिलने वालों से भाई इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, डॉलर के बारे में, तो ये 60 महीने वाला बेनिफिट भी उनको दिलाएं। और इसके साथ में कंपनी एक अलग से अपॉर्चुनिटी देती है, आप साथ मिलकर काम करते हैं तो कंपनी के अलग अलग जो लाभांश है वो भी आपको मिलते हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी रहती है, हम फील्ड में लोगों को देते हैं। और इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह से आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी।